مہمان خصوصی کی حیثیت سے یہاں موجود میرا قربانی صاحب، نیاز اختر صاحب، جاوید اختر صاحب اور آج کی اس محفل کے ممتاز شریف صاحب اور فاطمہ حمزہ. بنچ کی طرف سے آج کچھ کہنے کا موقع ملا. ممتاز شریف کی افسانوی دنیا کے عنوان سے میں اپنی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. محمد ممتاز احمد سے ممتاز شریف بننے میں ان کے جگری دوست ہم جماعت تنویر اختر رومانی کا ایک اہم رول ہے. وہ اسکول کے زمانے میں ممتاز شریف کو جاسوسی ناول اور دیگر ادبی رسالے پڑھنے کے لیے کیا کرتے تھے. رومانی صاحب کا پہلا افسانہ ندامت کے آنسو دسمبر 1975 میں شائع ہوا، لیکن ممتاز شریف کا پہلا افسانہ پیاسے لوگ کے دوسرے ایڈیشن کے مطابق تنویر اختر رومانی کے پہلے افسانے سے قریب 8 ماہ قبل 1975 میں شائع ہوا. رسالے کا نام ہے ماہنامہ پاسبان، چنڈی گڑھ. یہ اپریل کا شمارہ ہے. اور اگر پہلے ایڈیشن کی بات کی جائے تو اس میں پہلے افسانے کی اشاعت 1975 درج ہے اور دوسرے ایڈیشن میں 1975 درج ہے. پہلے ایڈیشن میں پہلے افسانے کی اشاعت 1973 ہے. اب یہ ممتاز شریف صاحب بتا سکتے ہیں کہ سچائی کیا ہے، لیکن اگر دوسری اشاعت کی بات 1975 مان لے تو اس طرح سے ممتاز شریف صاحب کو لکھتے اور چھپتے ہوئے قریب 50 سال ہوئے ہیں. اس صدی کا بھی سفر کم نہیں ہوتا. پیاسے لوگ کی پہلی اشاعت تقریباً آج سے 39 سال قبل 1986 میں ہوئی تھی، جس میں صرف 16 افسانے تھے اور اس وقت اس کی ضخامت 88 صفحات تھی. دوسرا ایڈیشن 128 صفحات کا ہے، جس میں پرانے 16 افسانوں کے ساتھ 6 نئے افسانے شامل ہیں. اس طرح سے کل 22 افسانے ہوتے ہیں. 10 افسانچے کو بھی اس میں شامل کیا گیا، جس کے عنوان کی بیٹی، قیمت، دوست، کام والی جا چکے ہیں، بیوقوف، اہمیت، ثانیہ، پادر خانہ ہے. یہ تمام افسانچے افسانوی مجموعے پیاسوں کی اشاعت کے بعد لکھ کے اور اخبارات کے وسائل میں شائع ہوئے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ زبان کا ذائقہ بدلنے کے لیے انہوں نے افسانچے لکھے ہیں. جتنے بھی افسانچے ہیں ان میں طنز کا پہلو نمایاں ہے اور وہ بات جو کم لفظوں میں داری تک پہنچانا چاہتے ہیں اس میں ممتاز شریف کامیاب. ایک نمونے کے طور پہ افسانچہ کر رہا ہوں. اپنے دوست محمد کا یہ بات درست نہیں کہ سبھی عرب ہم غیر ملکی لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. وہ لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں. اگر تم دبئی جا کر اس کے اپنی شہر سے ملو گے تو وہ تمہیں اپنے گھر لے جائے گا، ان کا کھانا کھلائے گا اور یہاں تک کہ وہ اپنے آرام دہ بستر پر سلائے گا. صبح اٹھ کر ناشتہ اور کافی کی پیش کرے گا. تو ہم نے پوچھا کیا کبھی تمہارے ساتھ ایسا اتفاق ہوا ہے؟ رمیش نے کہا میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا، البتہ میری بیوی کے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہے. اس افسانچہ کے ذریعہ دراصل ممتاز شریف عرب کے شہروں کی عیاشی کا پردہ فاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب افسانچوں سے باہر نکل کر افسانوں کی ممتاز دنیا کی طرف چلتے ہیں. پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ دوسری اشاعت میں 6 نئے افسانے شامل کیے گئے ہیں: قرآن، نیار عصمت، اور حادثہ. لیکن یہاں مجھے کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ یہ افسانے جو بعد میں لکھے گئے ہیں وہ افسانے جو 40 سے 50 سال پرانے لکھے گئے ہیں افسانوں کو لذات سے یا شاعری کرتے ہوئے دکھائی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ میں یہاں ان کے نئے افسانوں کے بجائے ان کے پرانے 3-4 افسانوں پر اپنی بات رکھنا چاہوں گا. ممتاز شریف کے وہ افسانے جو انہیں افسانوں کی دنیا میں ممتاز کرتے ہیں وہ افسانے ہیں پیاسے لوگ، شرط، زبان یاد، امانت، نیا صاحب، شبھ نام اور بھابھی. سب سے پہلے بات افسانہ بھابھی تھی. 40 سال قبل کا افسانہ اس وقت بھی اچھا لگا تھا، آج بھی دوبارہ ویسا ہی تاثر پڑھنے کے بعد ملا. اس افسانے میں ممتاز شریف نے بے روزگاری کو سامنے رکھ کر نوکری کی تلاش میں بے روزگار نوجوانوں کو ہندوستان سے عرب کا سفر کرتے ہوئے دکھاتے ہیں. کئی طرح کے سہانے خواب ان کی جاگتی آنکھوں میں پڑتے ہیں، لیکن بھابھی جیسی کئی حسینائیں ایسی ہوتی ہیں جو نوجوانوں کو حسن کے جال میں پھنساتی ہیں. اس
उसके बाद एक सुनहरी रात का तोहफा देकर जिंदगी भर तोहफे वसूल किए। अफसाने का मरकजी किरदार अख्तर है और वो करीम का एक अच्छा दोस्त है। करीम को बुलाने पर ही अख्तर उसकी खोली का पता तलाश करते हुए पहुंचता है और वही करीम अख्तर को भाभी से मिलवाता भी है। पहली मुलाकात में ही भाभी की दो रंगीनाट और थोड़ी जान पहचान उसके बाद होती है। अख्तर बीमार पड़ता है। इलाज की गरज से भाभी उसे अपनी खोली में ले आती है, दवा देती है। फिर तबीयत बहाल होती है तो अख्तर को एक ऐसा तोहफा देती है कि कोई जाने के बाद भी उस नायाब तोहफे को वो भूल नहीं पाता है। और फिर उस खूबसूरत तोहफे की याद में वो हर माँ हमारे रक्त के साथ कीमती चीजें भी निकल जाता है। कई महीनों के बाद जब एक दिन वो भाभी के लिए कीमती साड़ी पार्सल करने जाना पहुंचा तो वहाँ एक हिंदुस्तानी से मुलाकात हो जाती है। वो भी किसी तोहफा को भेज रहा होता है। वो अख्तर से एड्रेस लिखने के लिए कलम मांगता है और अपने खूबसूरत पैकेट पर पता लिखने लगता है। पता लिखने के दौरान वो ये देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसने जो पता लिखा था वो भाभी का था। अख्तर ने करीम को बताया था कि भाभी का शौहर गर्भ में रहता है। वो कलम मांगने वाले को भाभी का शौहर समझ लेता है और अपना पैकेट छुपाने की कोशिश करता है कि कहीं को देख न ले, लेकिन हकीकत जानने की ख्वाहिश में वो पूछ बैठता है और खूबसूरत पैकेट है, क्या घरवाली के लिए भेज रहे हैं? उस पर वो शख्स कलम वापस करते हुए मुस्कुराता है और एक सख्त हाथ रखते हुए कहता है, जनाब मेरे नसीब में तो शायद घरवाली नहीं, लेकिन एक मेरी भाभी है जो घरवाली से किसी तरह कम नहीं, वही मेरी सब कुछ है। इतना सुनते ही अख्तर के हाथों में पार्सल वाला पैकेट कपड़ा रह जाता है और अख्तर को भाभी के पुरुष, उनकी शानों पर और उनके शौहर के बारे बाहर रहने का राज मालूम हो जाता है। इसके बाद वो साड़ी वाले पैकेट को बगैर पोस्ट किए वो जिन कदमों के साथ लौट जाता है और अफसाना यहाँ तक खत्म होता है। मुमताज शाहरी के अफसाना बेहद खूबसूरत है और नई नस्ल के नौजवानों के लिए एक सबक भी अपने पीछे छोड़ जाता है। लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अफसाने में नहीं है। मुमकिन है कि बैन सुकून में कहीं मौजूद हो, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि करीम जब अख्तर का अच्छा दोस्त है और वो भाभी को पहले से जानता है तो अख्तर को मिलवाने से पहले उसके बारे में पता है कि यहाँ करीम जैसा दोस्त भी शख्स के दायरे में आता हुआ दिखाई देता है। और जब मालूम होता है कि वो भी यहाँ से अगर क्लाइमैक्स की तरफ बढ़े तो जहाँ अख्तर कलम मांगने वाले शख्स को उसका शौहर समझ लेता है और जब मालूम होता है कि वो भी भाभी का शिकार है तो उस राज को फाश करना चाहिए था, उसे भी भाभी के चुगल से आज़ाद कराना था। अगर ऐसा होता तो बेशकीमती तोहफे पहुंचने का सिलसिला मुनक़ता हो सकता था। ऐसा करके अफसाना कई और भाइयों की ऐशो-इशरत की जिंदगी के दरवाजे पर ख्वाबों की उड़ान भरने वाले नौजवान अख्तर के जरिए हमेशा के लिए अफसानी तारी लगा सकता था। लेकिन इस बात की नजर अफसाना अपने आप में बहुत हो है, फन और टेक्निक के एतबार से अहम है। कम्युनिटी में भाभी जैसा अफसाना लिखने के लिए मुमताज शाहरी मुबारकबाद के लिए एक और अफसाना केचली उतारा हुआ सांप। इसमें मुमताज शाहरी ने निहायत हिम्मतमंदी के साथ महेश बाबू जैसे सुपरपोश इंसान पर पर्दाफाश किया है और ये बताने की कोशिश की है कि ऐसे लोग उजाले में इंसानियत पर झोला बांधकर घूम रह जाते हैं और मौका मिलते ही रात के अंधेरे में भेड़िया बन जाते हैं और दूसरे की माँ का देखने की इज्जत उतार करते हैं। ऐसे में इंसान या हैवान को मुमताज शाहरी ने केचली उतारे हुए सांप ताबीर किया है। अफसाना शब्द इस अफसाने में मुमताज शाहरी ने गरीब लड़कियों की शादी, जहेज और उससे जुड़े हुए दूसरे मसाइल को सामने रखकर इस सिस्टम के खिलाफ आवाज बुलंद करने की कोशिश की है और दिखाया है कि एक भिखारी जो राम मंदिर के सामने भीख मांगा करता है, जब उसकी बेटी जवान होती है और वो उसकी शादी करना चाहता है तो उस शादी के वक्त राम मंदिर के सामने वाली वो जगह जहाँ वो बरसों से भीख मांगता आया था, जो उसकी रोजी रोटी का वाहिद सरमाया था, दामाद को जहेज में देना पड़ता है। इस शर्त के पूरा होने पर ही समझिए उस भिखारी की बेटी की डोरी उठती है। अब आप समझ सकते हैं कि मुमताज शाहरी की निगाह सिर्फ अमीरों के यहाँ जहेज के लेन देन पर ही नहीं बल्कि उनकी तेज निगाहें भिखारियों के घरों के अंदर के मसाइल से भी बचती हैं जो नासूर बनकर समाज को पूरा करना है। अफसाना ज़बानियात में उन्होंने एक ऐसे मौजूद पर कलम उठाया जो दोस्ती और दुश्मनी, पसंद और नापसंद, मोहब्बत और नफरत के दरमियान की कदर मुश्तरक को दिखाने का सही भी है। इस कदर मुश्तरक में इस बात पर जोर दिया गया है कि एक ही चीज, एक ही काम और दो अलग अलग वक्त में कभी अच्छा और कभी बुरा हो सकता है।
यानी दुश्मन का दोस्त हमें दुश्मन लगता है और रोजा का कुत्ता हमें अच्छा पसंद लगता है। यहाँ भी वही बात है कि अफसाना का मरकजी पिता जावेद एक अरबी अहमद कमाल से अपना नाम जावेद की जगह जावेद सुनता है तो उसे लगता है कि उसका गला दबा दे, लेकिन जैसे ही उसकी हसीन बीवी जावेद की जगह जावेद रहती है तो ज़बान यार से अदा हुआ ये लफ्ज़ उसे लगता है जैसे दुनिया के सबसे प्यारी ज़बान अदा किया गया हो और वो उस वक्त उसकी रूह में उतर कर एक तरह का सुकून अदा कर रहा हो और वो पढ़कर हसीना का मुंह चूम लेना चाहता है। इस तरह का ये और अफसाने हैं जिसका जिक्र जरूरी था, लेकिन वक्त की तंगी के बाइस अपनी बातों को मुख्तसर करता हूँ। जहाँ तक उसलूब की बात है तो कोई खास उसलूब मुमताज़ शारिफ के यहाँ जो उसकी शनाख्त का जरिया हो वैसा जहन पर नक्श होता हमें नजर नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद उनकी तहरीर में कुछ ऐसी बातें जरूर हैं जो पढ़ने वाले को अपने साथ एक बहाव के साथ ले जाती हैं। चलिए के पास सामने तो वक्त की मोह तेजी से पिघल रही थी और देखते ही देखते 6 दिन कर गए मसीहा की मौत। शनाक की आवाज़ माजी की हिंदी तस्वीरों को सुलगा लेगी। शनाक की आवाज़ें उस गाड़ी की एल्यूमिनियम के कटोरी में रखी सीटों से पैदा हो रही थी। शायद मुझे अपने सामने खड़ा देखकर गा रहा था तो दफ्तर में कदम रखते ही अपने अरबी बॉस को सवाहुल खैर कहना पड़ता है, जिसके जवाब में मैं सवाहुल नूर की खनकती हुई सदा सुनता हूँ। सवाहुल नूर ऐसा स्विच है जिसके ऑन होते ही अजीब में सारे काम के इम्कानात नष्ट होने लगते हैं। मुमताज़ शारिफ की अफसानी दुनिया को सामने रखकर अगर उनकी शनाख्त की बात करूँ तो 20 सदी से जीतने के बावजूद वो पहचान जो अफसानी दुनिया में बनी चाहिए वो नहीं बन पाई है। इसलिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, खुद मुमताज़ शारिफ है। एक तवील अरसे से खुद को असली अफसानों से अलग करना, कम लिखना या ब्यूरो चीफ, कभी एडिटर, कभी प्रिंटर और कभी पब्लिशर की हैसियत से सहाफत को कैरियर बनाने के बारे में सोचना, एजुकेशन मिशन के तहत मदरसों पब्लिक स्कूल की बुनियाद रखना और उसकी तरक्की के लिए राजनीति एक कर देना, ये सारी बातें ऐसी हैं जिसके बाइस मुझे लगता है कि वो असली अफसानों से कुछ हद तक दूर होते चले गए। लेकिन ये तो अच्छा हुआ एक बार फिर से तनवीर रुमानी का, जिन्होंने उन्हें चिचोड़ा जगाया और नए सिरे से जोड़ने के लिए पुरानी अफसानी बोतल में थोड़ी सी नई अफसानी शराब डालकर एक बार फिर उन्हें अफसानी महकते रख दिया है। अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मुमताज़ शारिफ एक नई तवानाई के साथ अफसाने की दुनिया में नजर आएंगे, उर्दू को बेहतरीन अफसाने देंगे, कई और अफसानी मजमूए मंजर-ए-आम पर आएंगे और हम दोस्तों को इसी तरह चर्चा होने का और उनके नाम का जश्न मनाने का सुनहरी मौका अदा करेंगे। फिलहाल जैसे लोग की दूसरी कामयाब इशार पर उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया।